हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। बहुत लोगों की डिमांड्स आ रही थी कि सर जल्दी जल्दी बनाइए, सेक्शन एक्सप्लेन कीजिए, बिकॉज ऑब्वियसली सिलेबस हर चीज़ का बढ़ गया है डिपेंडिंग अपॉन वट एवर स्टेट या जुडिशरी के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, इन जनरल पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बट लॉ स्टूडेंट हो, आई मीन लॉ पेपर्स की तैयारी कर रहे हो, एंड एनी स्टूडेंट इफ ही इज डीलिंग विद लॉ सब्जेक्ट्स, आई बिलीव कंटेंट इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आई डोंट नो हाउ ये खत्म हो पाएगा किसी से भी। बट हम सब ट्राई ही कर सकते हैं, तो हम ट्राई कर रहे हैं। सो चैप्टर 7A है ये एक तरह से एडिशन है ये। सो इसको हम सिंपली समझेंगे क्योंकि ये बहुत लंबा दे रखा है। ऑब्वियसली इतना एक्सप्लेनेशन का टाइम नहीं है, बट मैं कोशिश करूंगा मैक्सिमम ट्राई कर सकूं, जितना हम एक्सप्लेन कर सकते हैं उतना तो करेंगे ही। सो ये डील करता है रेसिप्रोकल अरेंजमेंट फॉर असिस्टेंट इन सर्टेन मैटर्स एंड प्रोसीजर फॉर अटैचमेंट एंड फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। तो इसमें डेफिनेशन दे रखी है इन दिस चैप्टर, अनलेस कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर। कॉन्ट्रैक्टिंग सेल स्टेट क्या है, आइडेंटिफाइंग क्या है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, एंड ट्रेसिंग क्या है। So, contracting states simply means a country that has an agreement with India for legal cooperation. Simple. Identifying. Identifying means proving that property comes from a crime. That's it. कि प्रॉपर्टी जो है वो क्राइम से आई है, ये प्रूव करना, वो आइडेंटिफाई है। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का मतलब है प्रॉपर्टी और मनी जो हो वो ऑब्टेन की हो इलीगल एक्टिविटीज से। हर उस तरह का एसेट, इंक्लूडिंग मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल और इनटेंजिबल, जो कि क्राइम से रिलेटेड, दैट इज अ प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल चोरी की गाड़ियाँ, दैट्स अ एसेट, दैट्स अ टेंजिबल एसेट। सो क्या वो प्रॉपर्टी में आएगा? बिल्कुल आएगा। ट्रेसिंग, फाइंडिंग आउट वेयर प्रॉपर्टी कम्स फ्रॉम और हु ओन्स इट। सो ये ट्रेसिंग है। सेक्शन 5A जो है वो डेफिनेशंस की बात कर रहा है, दैट्स इट, इतना ही है। तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर रखा है बिकॉज ऑब्वियसली लीगल लैंग्वेज ऐसी ही है। 105B बी सी भी देखना पड़ेगा। असिस्टेंस इन सिक्योरिंग ट्रांसफर ऑफ पर्संस वेयर अ कोर्ट इन इंडिया इन रिलेशन टू अ क्राइम मैटर डिजायर दैट अ वारंट फॉर सच अरेस्ट of any arrest to produce a document or other things issued by it shall be executed in any place in contracting states. It shall send such warrants in duplicate in such forms to such court, judge or magistrate through the authority as such the central government may by notification specify in this behalf of court, judges, magistrate, as the case may be, shall cause the same to be executed. Nothing presenting anything contained in this section code in this code if investigation or inquiry into an offence of an application made by the investigation officer or the officer superior rank to the investigation officer that attendance of a person who is in a place of contracting state is required to connection with such investigation inquiry. The court is required that attendance is also required shall be issued summons or warrant and duplicate against said persons to such court, judge or magistrate in such forms or central government may notification specify in this behalf to cause the same to be served executed, where the court in India in relation to criminal matters has received a warrant for arrest of any person, requiring him to attend the procedure document or other things in certain in courts or before any other investigation is issued by the court, judge the magistrate contracting state, the same shall be executed as if it is a warrant to receive from another court in India for execution within his local limits. Where such transfer to contracting state pursuant to the subsection 3, it is prisoner of the India Court of India that may impose its condition as the court thinks fit. Where the court person transferred in India pursuant to subsection 1, subsection 2, if the prisoner is contracting state, the court in India shall ensure that the conditions subject to which the prisoner is transferred to India shall kept in the custody subject to such conditions as the central government may direct in writing. तो बहुत लंबा है, इसको सिंपली मैं समझाऊं तो ये बताना चाह रहे हैं कि सेक्शन 105B सिंपली डील कर रहा है, बी एंड सी बेसिकली ये डील कर रहे हैं कि हेयर बोथ इंडिया एंड एनी अदर कंट्री दे, क्या होता है कंट्रीज की ना ज्वाइंट अंडरस्टैंडिंग्स या एग्रीमेंट्स होती है। फॉर एग्जांपल कोई भगौड़ा, कोई आदमी करोड़ों रुपए लेके भाग गया इस कंट्री से उस कंट्री में। अब आपको पता है कि ए पर्सन अमेरिका में छुपा हुआ है, तो अब आपकी जब तक उस कंट्री से निगोशिएशन नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है, वो कंट्री आपको असिस्ट नहीं कर रही है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं है, कोई एमओयू नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप उसको वहां जाके पकड़ोगे कैसे? वहां की पुलिस से बात कैसे करोगे? इसीलिए यहाँ सेक्शन 105 हेल्प करता है। 105B यहाँ कह रहा है, यहाँ पर बोथ इंडिया एंड अदर कंट्रीज हैव जॉइंट अंडरस्टैंडिंग एंड एग्रीमेंट विद ईच अदर दैट इन केस टू अरेस्ट एंड फाइंड समवन इन योर कंट्री एंड टू फॉरफिट, किसी की प्रॉपर्टी को जब्त करना हो, प्रॉपर्टी बोथ कंट्री विल असिस्ट ईच अदर। सिंपल। फॉर एग्जांपल कोई अमेरिकन सिटीजन कोई मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड के पुराने बस्तर गांवों में जाके छुप जाए, वहाँ उत्तराखंड हो या केरला हो, कोई भी स्टेट हो, वहाँ की कोई गांव का हवलदार, कोई भी किसी भी तरह का पुलिस ऑफिशियल देख ले और पकड़ ले, गांव वाले किसी को जाके इन्फॉर्म कर दे, तो अब इसको कैसे वापस सौंपेंगे, इसकी प्रॉपर्टी कैसे ढूंढेंगे इंडिया में या किसी और कंट्री में? तो इसीलिए ये मदद कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर बताया गया है
सेक्शन 105 बी असिस्ट करता है असिस्टेंस इन अरेस्ट ऑफ पर्सन। ऐसे इंसान को अरेस्ट कैसे किया जाए? सबसे पहले तो अरेस्ट वारंट्स। इफ एन इंडियन कोर्ट वांट्स टू अरेस्ट समवन इन अदर कंट्री, इट कैन सेंड अ वारंट टू दैट कंट्रीज कोर्ट फॉर एग्जीक्यूशन। इंडिया से एक पर्सन ये भाग गया है ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया से एक वारंट इशू किया ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ऑस्ट्रेलियन कोर्ट्स को कि आप उसको अरेस्ट करो, तो वो इस वारंट को एग्जीक्यूट करवाएंगे, दैट्स इट। उसके बाद है समन वारंट्स। if police in India need someone from a contracting state to testify, they can ask a court to issue a summon or warrant। अब मान लो पुलिस जो है इंडिया में, उसको चाहिए, वो चाहते हैं किसी कॉन्ट्रैक्टिंग को जो टेस्टिफाई करे, तो तब क्या होगा? तब जो कोर्ट है वो समन या वारंट इशू कर सकता है कि उसको लेके आओ। रिसीविंग वारंट्स, इफ वारंट फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री कम्स टू इंडिया, इट विल बी ट्रीटेड लाइक एनी इंडियन वारंट। सिमिलर है, जब हम अगर वारंट भेज रहे हैं उनको और वो उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो हमारे पास वारंट आएगा तो हम उसे एग्जीक्यूट नहीं करेंगे? सिमिलर, सेम सेम, दैट्स इट, सिमिलर। उसके बाद है कंडीशंस ऑन प्रिजनर्स। इफ अ प्रिजनर इज सेंट बैक टू इंडिया, कोई प्रिजनर जो है उसको इंडिया वापस भेज दिया गया है फ्रॉम ए कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट हमने ऊपर पढ़ा था, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट अ कंट्री दैट हैज एन एग्रीमेंट विद इंडिया फॉर लीगल कॉपरेशन, वो है, ध्यान रखना इस बात को। तो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट ऐसी कंट्री जहां हमारे साथ एग्रीमेंट है कि हम एक दूसरे को लीगल कॉपरेशन में हेल्प करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में जहां प्रिजनर ऐसी स्टेट में है, इफ अ प्रिजनर इज सेंट बैक टू इंडिया किसी कॉन्ट्रैक्टिंग कंट्री से, स्टेट से, देन द इंडियन कोर्ट और गवर्नमेंट कैन इम्पोज कंडीशन ऑन देम। तो इंडियन कोर्ट क्या करेंगे? उस पर कंडीशंस लगाएंगे, दैट्स इट। इतना ही है, उसमें इतना अननेसेसरी लिखा हुआ है, घुमा फिरा के एक ही बात लिखी है जो मैंने बताई है, दैट्स इट। आपको इतना ही समझना है। आपको ध्यान रखना है कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट लिखा हुआ है सेक्शन में बार बार, तो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट जो हमने 105 में मेंशन किया है, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट वही है। कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट कुछ नहीं है, एक कंट्री के साथ ऐसी एग्रीमेंट है जहां हम उनकी लीगल बातें मानेंगे, वो हमारी लीगल बातें मानेंगे। हम वारंट भेजेंगे तो वो चोर को पकड़ के लाएंगे, वो वारंट भेजेंगे तो हम चोर को पकड़ के उनको देंगे, दैट्स इट।